Good morning, dear student. Now we start a class 10th biology. 3 days chemistry and 3 days biology. Now we start a biology chapter first life process part 4. Human digestive system. Figure and explain. Figure and explain. Already the alimentary canal. Overall the alimentary canal. Starting position, mouth cavity, and last anus. And total alimentary canal is basically long tube extending from the mouth to the anus. We can see that the tube has different parts, various regions are specialized to perform different functions. And a part nasal cavity and mouth cavity. Start a digestion system, mouth cavity. And another pipe, food pipe, esophagus and stomach, and different function all over the related organ. What happens to the food wants to enter our body? हमारे बॉडी के अंदर भोजन जाए तो क्या शुरुआत होगी कार्य? We shall discuss this process. We eat various type of food which has to pass through the same digestion tract, different organ of alimentary canal. The food had to be proceed to generate particles which are small and same texture. कहने का ये मतलब है भोजन को हम कॉम्प्लेक्स के रूप में हम खाते हैं. Already holozoic nutrition. Under the holozoic nutrition, complex food item take in your body and start a digestion. Digestion system is a regular sequentially work by gland and different tract and different organs as like mouth cavity, esophagus, stomach, pancreas, and small intestine, large intestine, liver, salivary gland, all work together on the food item. Now start a figure. नसल कैविटी, नाक से सांस लिया जाता है, नसल कैविटी कहते हैं. एंड भोजन को हम रखते हैं उसको हम माउथ कैविटी कहते हैं. ये माउथ कैविटी में हम जाते हैं तो एनस, टीथ एंड टंग, टू टू टूल्स. फिजिकल वर्क दांतों के माध्यम से टीथ के आधार भोजन को पकड़ना, कैच करना, टीयर, ग्लाइडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ सलाइवा, हेल्प ऑफ tongue, mixing of saliva, salivary gland secrete saliva and a special type of enzyme create enzymes named amylase enzymes. Enzymes are biological catalyst. ये हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन
होने के लिए लगातार इसकी मौजूदगी रहना जरूरी है। इनके ही उपस्थिति में, प्रेजेंट में मेटाबॉलिक क्रियाएं, मेटाबॉलिक प्रोसेस क्रिएट होता है, यानी एंजाइम्स वर्क ऑन स्टार्च, polymers of heavy polymers of glucose joined together a unit polymerization of glucose so starch and bulky so called polysaccharide carbohydrate generally three types: monosaccharide, disaccharide and polysaccharide. In the polysaccharide, action of enzymes on starch convert a simple sugar and glucose. ये ग्लूकोज में बदल देता है, कन्वर्ट कर देता है। यानी कहने का ये मतलब, हम जो भारी बड़ी बड़ी मॉलिक्यूल्स बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, तो वो उस बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदलने की प्रक्रिया है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के ऑर्गन्स ऑब्जर्व कर दे। तो नाउ स्टार्ट फूड टू वर्क in mouth cavity. First to work physical work by tongue and teeth, and second chemical work salivary gland, saliva, starch change to glucose. Next, esophagus, फूड पाइप। भोजन इस एसोफेगस से आगे की तरफ बढ़ेगा। म्यूकस, इन एसोफेगस के इनर वॉल के अंदर म्यूकस एंड चिपचिपा पदार्थ, म्यूकस जो भोजन को आसानी से अंदर की तरफ फोर्स करता है, आराम से फोर्स करके ले जाता है और स्टमच के अंदर पहुंचता है, स्टमच के अंदर भरता है। जब भोजन कर लिया जाता है तो स्टमच के अंदर क्रियाएं स्टार्ट, यानी अगेन डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन स्टार्ट। We can say that start digestion mouth cavity, saliva, amylase start to glucose, मतलब थोड़े से यहाँ स्टार्ट शुरू कर देता है माउथ, लेकिन कंप्लीट जो भोजन को डाइजेस्ट करने के हिसाब से उस भोजन के रूपरेखा को बदलेगा, चेंज, फूड आइटम को चेंज करेगा बाय स्टमच के इनर वॉल, अंदर की तरफ लेयरिंग होती है और बीच बीच में पाउचेस, found a gland, a gastric gland called gastric gland and a acid form, HCl hydrochloric acid secreted on food. Gastric juice, two types of new substance and new enzymes as mucus secrete, pepsin and mucus. Pepsin HCl की सक्रियता यानी HCl के ऊपर डिपेंड होता है एंड पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के बाद प्रोटीन को डाइजेस्ट थोड़ा सा करना शुरू करता है,
स्टार्ट यहीं से। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और इसके साथ एक अनदर एंजाइम रेनिन, जो दूध को तुरंत जो है कर्ड, फैट यानी कर्ड में बदलने की प्रक्रिया है। कोई भी मिल्क के प्रोडक्ट हम खाते हैं तो उसको तुरंत जो है रेनिन कर्ड में बदलने का प्रक्रिया शुरू करता है, क्योंकि डाइजेशन के हिसाब से वो भोजन बनना शुरू होता है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट बाहर से आए हुए इन माइक्रोब्स भोजन के साथ उसको डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं सारे बैक्टीरिया। एंड पेप्सिन की योग्यता यानी पेप्सिन के सक्रेशन या प्रभाव को बढ़ाता है, जिससे भोजन बहुत तेजी से अपना फिजिकली रूप जो है चेंज करता है। एंड लास्ट, a paste type of material form a paste like material form and so called chyme last product in stomach chyme. Now start a next tube related and bind a duodenum and then another tube small intestine but length इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन पहुंचती है और जैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन पहुंचती है वैसे ही एसेंसरी ग्लैंड, सहायक ग्लैंड, एसेंसरी ग्लैंड लीवर एंड पैंक्रियास। लीवर ऑलरेडी मेंशन, लीवर गॉल ब्लैडर सेक्रेट बाइल and store gallbladder and pass a bile duct in small intestine, another pancreas and pancreatic duct combine to common duct on bile duct। यानी कहने का मतलब ये दोनों नली एक कॉमन यानी एक जगह दोनों आकर मिलते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन इज लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेशन, क्योंकि यहीं पर सारे न्यूट्रिएंट अलग अलग हो जाते हैं, बिल्कुल अपने सबसे छोटी पार्ट में हो जाते हैं और आसानी से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होता है। तो नेक्स्ट आगे स्मॉल इंटेस्टाइन बाइल जूस एक्शन ऑफ फैट, ये फैट पर एक्शन करता है। फैट का इमल्सिफिकेशन यानी फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे ग्लोब्यूल में चेंज कर देता है, उसी को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। जैसे दूध से दही भी एक बन रहा है तो इमल्सिफिकेशन। एंड ये स्टमक से आया हुआ भोजन वो एसिडिक होती है, अम्लीय होती है, वो चेंज पुनः होता है बेसिक इनमें टर्म बेसिक नेचर ऑफ फूड ड्यू टू बाइल जूस, यानी बाइल जूस का नेचर क्या है, बेसिक नेचर है। तो कंप्लीट डाइजेस्ट food in small intestine. Pancreas, another digestive gland, secrete enzyme trypsin action of protein and protein change into amino acid and lipase, another enzyme lipase secrete on pancreas एक्शन ऑफ इमल्सिफिकेशन फैट, यानी इमल्सिफिकेशन फैट का यानी चेंज इन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, यानी फैट चेंज इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड स्मॉल साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन एब्जॉर्ब बाय स्मॉल इंटेस्टाइन
in the body, in the all the body. And last, another small intestinal juice secrete. यहाँ एक चीज और कि यहाँ खुद इंटेस्टाइन के अंदर जूस म्यूकस के रूप में निकलता है, जो भोजन के कंप्लीट डाइजेशन यानी डाइजेस्ट कर देता है, प्रोटीन को और डाइजेस्ट कंप्लीट, फैट को डाइजेस्ट, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कंप्लीट कर देता है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ खास प्रोजेक्शन संरचना यानी स्ट्रक्चर इन इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सो कॉल्ड भिलाई, माइक्रोविलाई, और माइक्रोविलाई के अंदर ब्लड वेसल्स एंड ए लार्ज ब्लड वेसल एंड ब्लड के माध्यम से भोजन के न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब कर लेता है बॉडी। एंड लास्ट अगेन पुश ए फूड इन लार्ज इंटेस्टाइन and excess water absorbed in our body, and fecal matter. Last, fecal matter go to large intestine and store in rectum, and time to time egation. So overall digestive system of human explain स्ट्रक्चर एंड फिगर के माध्यम से आपको समझाया गया है। तो ठीक है, आज कंप्लीट ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू।